friends, once again welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. As we have started physics lecture for class 9th also, so in my very first lecture I gave a very short introduction regarding the very first chapter of class 9th, that is motion. But in my today's lecture we'll be knowing further what are physical quantities, what is physics. These all things we'll be learning in my today's lecture. Okay friends, so let us start today's lecture. The topics that we are going to cover in today's lecture are: what is physics and what are physical quantities, what are the types of physical quantities, what is unit and what is system of unit, and what is SI system of unit. So guys, let us start. First of all, what is physics? You all are aware phenomena of light, sound, electricity, gravitation. I think you all are aware about these natural phenomena: light phenomena, sound phenomena, electricity, gravitation. What do we call it? We call it natural phenomena. And the branch of science, listen to me carefully, the branch of science that deals with the study of these natural phenomena, that branch is called physics. Is that clear? Physics is that branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. Is that clear? So, it was the basic definition of physics. Now let us move further. Now, what is physical quantity? Okay guys, now you have come to know that what is physics. But now, there are various quantities present in the nature, like force, length, mass, speed. We call it as physical quantity. But how do we define them? Can you measure the force? अगर मैं आपसे पूछूं, ये राम है, राम ने इस एक वुडन ब्लॉक पे फोर्स लगाया, 10 फोर्स लगाया. व्हाट इज 10? 10 इज द फोर्स. बट कितना फोर्स? क्या हम इस फोर्स को मेजर कर सकते हैं? यस. हम क्या बोलते हैं? राम ने इस वुडन ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. इसका मतलब हम फोर्स को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. सिमिलरली, राम अपने स्कूल गया. मान लो क्या है? स्कूल है. राम अपने स्कूल गया. राम का स्कूल कितना है? उसके घर से कितने दूर है? 100. क्या 100? कुछ तो आपको इसको यूनिट देना पड़ेगा, कुछ तो मेजरमेंट करना पड़ेगा. मान लो राम के घर से स्कूल कितना दूर है? 100 मीटर. इसका मतलब आप लेंथ को भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. गॉट इट? इसका मतलब हम ये जो फिजिकल क्वांटिटी इनको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. इज दैट क्लियर? अभी आपने देखा कि हम फोर्स को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. लेंथ को भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. सो गाइस, all those quantities that can be measured, ध्यान से सुनना, all those quantities that can be measured, they are known as physical quantities. Is that clear? तो यहाँ पर हम physical quantities के लिए क्या लिख सकते हैं? All those quantities, you can write out the definition. All those quantities that can be measured, they are known as physical quantities. Is that clear? Okay. Now let us move to the very important topic, that is types of physical quantities. Guys, it is very important topic because you have to use this topic again and again in the coming videos and in the coming topics that are going to face in physics. Okay friends, let us start. Next topic, that is types of physical quantities. There are two types of physical quantities: scalar quantities and vector quantities. What are scalar quantities and what are vector quantities? Listen to me. Scalar quantities are those physical quantities which has magnitude, means they have numerical value, they have magnitude, but they don't have any specified direction. Those physical quantities which have magnitude but no specified direction. Got it? For example, mass of our body, mass of your body. हमारी बॉडी का जो मास है उसकी एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है, पर उसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है. और
वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसकी क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, बट उसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। और टेम्परेचर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। और अभी आप आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हो डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, these all are scalar quantities. They are scalar quantities because they have particular magnitude, but they don't have any definite or any specified direction. Similarly, time. Time has a particular magnitude. That कैसे, भैया 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, बट क्या टाइम की कोई अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। ऑन द अदर हैंड, वेक्टर क्वांटिटीज. Vector quantities are those physical quantities that has magnitude as well as direction. Listen to me. Vector quantities are those physical quantities which has magnitude as well as direction. So friends, vector quantities, those physical quantities which has magnitude as well as specified direction. They are called as vector quantities. As I have already told you, vector quantity के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, फोर्स के बारे में आप अपनी क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, बेसिक्स का आपने पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सारे टॉपिक्स आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिलहाल आप समझिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। नल के सबके घरों में है, सब लोग वाटर टैप खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, एनीथिंग जिसमें भी आप फोर्स लगाते हैं। मान लो मैंने आपको बोला ये वाटर टेप है, ओके, जैसे मैंने आपको बताया नल के सबके घरों में होते हैं, मैंने आपको बोला आपको इस टेप को खोलना है, पानी भरना है, आपने क्या किया, टेप पकड़ा और इसको रोटेट किया। आपने क्या किया, इसको रोटेट किया। इसका मतलब टेप को खोलने के लिए आपने इस डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया। अगर आप इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन ना घुमा के किसी उल्टी डायरेक्शन में घुमाते, किसी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते, तो क्या ये टेप खुलता, नहीं खुलता। इसका मतलब फोर्स, फोर्स क्या है, इसकी एक अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसको आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगाओगे तभी इसका इफेक्टिव यूज होगा। इज दैट क्लियर? इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देता हूं। हमारे घर में दरवाजे हैं, दरवाजे की कुंडी है, मैंने बोला आपको इस दरवाजे को खोलना है, आप आए, लगेगा धक्का मारने में, दरवाजा नहीं खुल रहा है। भैया दरवाजा खुलेगा कैसे, कब खुलेगा दरवाजा, जब आप इस कुंडी को क्या करोगे, ओपन करोगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तभी तो ये दरवाजा खुलेगा। इसका मतलब इससे क्या प्रूफ होता है, फोर्स, इट हैज पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड एज वेल एज पर्टिकुलर डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके। सिमिलरली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों टॉपिक हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दे आर आल्सो क्या है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इट वाज ऑल अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर में आपको बता चुका हूं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जैसे कि टाइम, टेंपरेचर, इन सब की अपनी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। सिमिलरली डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। Whereas vector quantity, vector quantities are those physical quantities which has magnitude as well as direction. तो सीधा सा फर्क इन दोनों में क्या है, भैया स्केलर में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। So it was all about scalar and vector. Now let us move to the next topic. So friends, before I start my next topic, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर मोशन का, उसकी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे जाकर उसे क्लिक कीजिए और आप इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर मोशन का वो देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी का मास है, हम अपने बॉडी का मास किसमें नापते हैं, केजी में। मैं बोलता हूं भैया सुधीर का मास कितना है, 60 केजी है। राम का मास कितना है, 50 केजी है। इज दैट क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं राम का मास है 50 केजी, केजी यहाँ पे क्या है, मास,
जो एक फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड दे आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर हम इसको मेजर करना है तो मेजर करने के लिए कुछ तो स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ सिस्टम हमारे पास चाहिए ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेफरेंस सिस्टम बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस सिस्टम को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे राम का मास है भैया 50 केजी, अगर मैं यहाँ से केजी हटा दूंगा, राम का मास है 50 क्या 50 केजी है, 50 पाउंड है, क्या 50। इसको पर्टिकुलर स्पेसिफाई करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए क्या दिया गया है, मेजरमेंट का तरीका दिया गया है। और इसी मेजरमेंट के तरीके को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। समझ में आया? तो यूनिट क्या है, यूनिट इज सिंपली अ रेफरेंस स्टैंडर्ड सिस्टम which is used to measure any physical quantity. For example, length. मान लो मेरा स्कूल मेरे घर से 5 है, क्या बोला मैंने, 5 है। यहाँ पर 5 क्या है ना आपको पता है ना मुझे पता है, मुझे बताना तो पड़ेगा ना। 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, ये क्या है। इसीलिए यहाँ पर मैंने बोला मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर यहाँ पे क्या आ गया, इस लेंथ जो कि फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट करने का एक यूनिट है। समझ में आया? हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम बनाया गया है। उस रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इज दैट क्लियर? यू कैन राइट डाउन व्हाट इज यूनिट। इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड सिस्टम यूज्ड टू मेजर any physical quantity. Is that clear? इसके बाद यूनिट आपको क्लियर हो गया। यूनिट मेजरमेंट के भी एक सिस्टम है भैया। लेंथ को तो हम मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरा मास को हम किलोग्राम में भी नापते हैं, और किस में नापते हैं, ग्राम में भी नापते हैं। हम क्यों नापे इसी में, हम तो ग्राम में भी नाप सकते हैं। टाइम को हम सेकंड में भी नापते हैं, मिनट में भी नाप सकते हैं। क्यों भाई, हम अपनी मर्जी करेंगे, हम किसी में नाप सकते हैं, किलोमीटर में, ग्राम में और मिनट में। इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो कोई कंट्री बोलती है कि हम इसमें नापेंगे, कोई कंट्री बोलते हैं हम इसमें नापेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इस यूनिट्स को क्या करता है, डिफाइन करता है, जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। उन्होंने एक तरीका निकाला। क्या तरीका, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आया? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इस स्टैंडर्ड सिस्टम, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा जितना भी मेजरमेंट है, लेंथ का, मास का, टाइम का, ये किस में किया जाता है, लेंथ को नापा जाता है मीटर में, मास, किसी भी बॉडी के मास को नापा जाता है किलोग्राम में, टाइम को नापा जाता है सेकंड। समझ में आया? दूसरा सिस्टम हमारा क्या है, ये आपका बन गया एमकेएस सिस्टम। दूसरा सिस्टम हमारा क्या बनता है, सीजीएस सिस्टम। कभी कभी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट किसमें दी रहेगी, सीजीएस में, जबकि इनका भी अपना एक एप्लीकेशन है। जब क्वांटिटीज कम हो, जब किसी भी चीज में अमाउंट कम हो, तो हम क्वांटिटी भी क्या, यूनिट भी क्या यूज करेंगे, कम। मान लो किसी स्केल है, स्केल को हम किलोमीटर में तो नापेंगे नहीं, वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। तो यूनिट का जो क्राइटेरिया है ये चेंज होता है एज पर द नीड, कि आपको कहां क्या यूज करना है, एमकेएस यूज करना है या सीजीएस यूज करना है। फिजिक्स में हम मेनली क्या यूज करते हैं, एमकेएस सिस्टम। तो आपको इसी से कंसर्न करना है। आगे हम जितना भी पढ़ेंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, उनका मेजरमेंट, उनके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान हर फिजिकल क्वांटिटी को किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड एमकेएस सिस्टम। इज दैट क्लियर? ये सिस्टम मेनली यूज कहां पर होगा, आपका केमिस्ट्री में, जहां पर आप क्या पढ़ोगे, मोल्स पढ़ोगे, एटम्स पढ़ोगे, वहां पर आपका सीजीएस सिस्टम यूज होगा। सीजीएस बोले तो सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, और एस remains same, that is second. Is that clear? So it was all about units and system of units. आपने पढ़ लिया यूनिट क्या होता है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। एसआई सिस्टम क्या होता है, एसआई मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये वो एजेंसी है जो डिसाइड करता है क्राइटेरिया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे मेजर करोगे। तो उन्होंने दो क्राइटेरिया दिए। पहला दिया एमकेएस,
मीटर किलोग्राम सेकंड, दूसरा दिया सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। हम फिजिक्स में जो मेनली यूज करने वाले हैं, जिसे आपको कंसर्न रखना है, दैट इज एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर is used to measure length, kilogram which is used to measure mass, and second which is used to measure time. Is that clear? So it was all about today. Guys, go through the lecture again and again. Learn these basic topics because these basic topics will make foundation. It will act as a foundation for you to learn physics very smoothly in coming lectures. Is that clear? And please go to the description box and click on the link in which I have taught you about very basic of motion. What is motion? No doubt I will be explaining you this topic in my coming lectures as well. But आप उस लिंक पे जाके इस टॉपिक को एक बार जरूर देखें. Thanks for watching my lecture, and guys, please don't forget to like, subscribe and share my videos and press the bell icon to be updated for my latest videos.